गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पुत्र जी ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਾਊਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਵੋਲਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੇਪਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਮਕ ਜਾਂ ਖੰਡ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਿਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਿਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਪਰ ਘੱਟ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਪਰ ਘੱਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਿਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਮਕ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਿਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਆ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਬੋਇਲ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ T0। T0 ਇਜ਼ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ, ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤੀ ਸ਼ੂਗਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੋल्यूशन आ गई ना, शुगर सोल्यूशन। ये क्या आ गया बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ध्यान नाल, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जो भी डिफरेंस आ गया, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस डेल्टा टी बी इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, दिस टी माइनस T0। जब प्योर पानी 100 पे बॉयल कर रहा है, अगर चीनी पान ते 101 पे बॉयल कर रहे हैं, इट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1 डिग्री। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1 डिग्री। सो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि अगर पानी च नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पाओ, अगर सॉल्वेंट च नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पाओ तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। सो मैथमेटिकली देखा गया कि डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा ये देखा गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है जी। ये और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। व्हाट इज के बी? के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कहीदा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी कहीदा इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है। पानी च नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नमक या खंड पाओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैथमेटिकली देखा गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, या डेल्टा टी बी इज के बी इंटू मोलैलिटी। के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कोई कहता के बी डिफाइन करो, तो याद रखो मोलल फिजिक्स का तरीका किसी ने डिफाइन करना, सामने वाले बराबर, बाकी हर चीज़ 1। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, यानी व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलो सॉल्वेंट। So what is molar elevation constant? Molar elevation constant is equal to elevation in boiling point when molality of solution is 1। वैसे के बी पता कितने बराबर होता है? के बी इज आर टी नॉट स्क्वायर ओवर 1000 इंटू एल वी। आर गैस कांस्टेंट है, टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो पानी है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, 1000 इंटू एल वी। एल वी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, हीट ऑफ वेपोरेशन पर ग्राम, या इन्होंने लिखते हैं एम आर टी नॉट स्क्वायर ओवर 1000 इंटू डेल्टा एच वी।
डेल्टा एच वी हीट ऑफ वेपरेशन पर मोल। सो आर टी नॉट स्क्वायर ओवर 1000 टू एल वी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन पर ग्राम तो डेल्टा एच वी हीट ऑफ वेपरेशन पर मोल। सो इन्हां चों कोई भी फार्मूला तुसीं लगा सकते हो, ठीक है जी। ये के बी लई और के बी की वैल्यू देखो, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मैं गल करा डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? व्हाट इज मोलैलिटी बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। यानी डेल्टा टी बी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा टी बी नंबर ऑफ मोल तो डिपेंड करती है, हेंस इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा फिर क्योंकि मैं क्या डेल्टा टी बी इज के बी इनटू मोलैलिटी, के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, पर याद रखो के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट अलग अलग सॉल्वेंटली अलग अलग है। इससे करके मैं क्या सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट से डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट से डिपेंड नहीं करती, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट से डिपेंड करती है। क्योंकि के बी अलग अलग सॉल्वेंटली अलग अलग है। के बी है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल पानी ਲਈ, पानी ਲਈ के बी है 0.52, लेकिन ही CCl फॉर वाटर ये पानी ਲਈ है तो 5.03 केल्विन किलोग्राम पर मोल है CCl4 ਲਈ। यानी के बी अलग अलग चीज़ अलग अलग है। पानी ਲਈ के बी 0.52 का मतलब की है, ध्यान ਨਾਲ सुनो, पानी ਲਈ के बी 0.52 का मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब पानी 'ਚ 1 मोल किसी भी चीज़ का पा ਦਿਓ, मोलैलिटी 1 रखो, यानी 1 किलो पानी 'ਚ 1 मोल किसी भी चीज़ का पा ਦਿਓ, मोलैलिटी 1 होगी। तो पानी का के बी क्योंकि 0.52 है, बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 0.52 ਵਧੇਗਾ। ये पॉइंट ध्यान ਨਾਲ सुनो, 1 किलो पानी 'ਚ 1 मोल ग्लूकोज पा दे, 180 ग्राम ग्लूकोज पा दो। 1 किलो पानी 'ਚ 180 ग्राम ग्लूकोज पा दे, मोलैलिटी 1। या 1 किलो पानी 342 ग्राम शुगर पा दो, मोलैलिटी 1। या 1 किलो पानी 'ਚ 80 ग्राम यूरिया पा दो, मोलैलिटी 1। सो जो सोल्यूशन 1 मोलल होवे, मोलैलिटी 1 है, के भी 0.52 है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 0.52 ਵਧਣਾ है, यानी 0.100 डिग्री तो बॉयल करता ना पानी। जे 1 मोलल सोल्यूशन बनाओगे पानी 100.52 तो बॉयल करेगा, यानी 1 किलो पानी 342 ग्राम खंड पाओगे तब पानी सिर्फ 100 तो 100.52 तो बॉयल करेगा। यानी 1 मोलल जो भी सोल्यूशन रखोगे पानी के केस बॉइलिंग पॉइंट 0.52 ਵਧੇਗਾ, CCl4 जो बॉइलिंग पॉइंट 5.03 ਵਧੇਗਾ। ये ख्याल रखना। डेल्टा टी बी इज के बी इंटू मोलैलिटी, यानी डेल्टा टी बी इज के बी। व्हाट इज मोलैलिटी बेटा? मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि मोलैलिटी है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। दोबारा सुन बेटा, जो मैं पानी 'ਚ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पावां, आ पानी का वेपर प्रेशर गर्म किया, इतने एटमोसफेयर के बराबर हो गया, यानी पानी इतने बॉयल किया, पानी 'ਚ खंड पाती, वेपर प्रेशर घट गया, गर्म किया, एटमोसफेयर के बराबर इतने होया, यानी आ पानी बॉयल कर रहा है, इतने खंड वाला पानी बॉयल कर रहा है। आ जिन्ना भी इनक्रीज होया दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो 100 तो 101 हो गया, एलिवेशन 1 डिग्री हो गया, 102 हो गया, एलिवेशन 2 डिग्री हो गया। मैथमेटिकली देखा गया डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी और डेल्टा टी बी इज के बी इंटू मोलैलिटी। व्हाट इज के बी बेटा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कोई कहता ना डिफाइन करो, मैं क्या आ वै अगर आ 1 होवे, यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। वैसे के बी का फार्मूला क्या होंदा? आर टी नॉट स्क्वायर ओवर 1000 इंटू एल वी। टी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन, एग्जैक्टली 373.15। एल नॉट लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन पर ग्राम, तो जो हीट ऑफ वेपरेशन पर मोल पुट करनी है फिर आ फार्मूला ला दो, एम इज मोलर मास, जो पानी है मोलर मास 18। ठीक है जी। अच्छा के बी की वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्वेंट लिए पर्टिकुलर होंगी है, जिदा पानी लिए 0.52 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड 5 है, यानी डेल्टा टी बी इज के बी इंटू मोलैलिटी ना। यानी अगर कोई भी सोल्यूशन 1 मोलल बनाओ तब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बी के बराबर होएगा, यानी 1 मोलल किसी भी चीज़ की सोल्यूशन पानी 'ਚ होवे तब बॉइलिंग पॉइंट 0.52 ਵਧੇਗਾ, यही CCl4 'ਚ होवे बॉइलिंग पॉइंट 5.03 ਵਧੇਗਾ। ठीक है। सो मिको फार्मूला डेल्टा टी बी इज के बी इंटू मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी बेटा? मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू। तो याद रखो जे को इन्ने मोल 1 किलो पानी 'ਚ घोले है, 1 किलो पानी जिन्ने मोल होंगे डायरेक्टली मोलैलिटी होता है। ये मेरे को फार्मूला गया। अच्छा बच्चा कहते सर ये फार्मूला आया कितों? देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से प्रोपोर्शन होंगे है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बच्चा के बी मैं क्या के बी नहीं है
K into mole fraction of solute. K into what is mole fraction? Number of mole of solute over number of mole of solute plus number of mole of solvent. कि NCERT relative lowering कहती है कि डिनोमिनेटर च नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैंसिल कर दो क्योंकि सॉल्यूशन डिल्यूट है, यानी डेल्टा TB इज K इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर मोल सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर मोलर मास, यानी डेल्टा TB इज K इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू नंबर मोल सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। आ K इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनू कहते KB, डेल्टा TB इज KB इंटू नंबर मोल सोल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रख, अगर सॉल्वेंट में 1 किलो ले लवा, अगर सॉल्वेंट 1 किलो हो जाए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज मोलैलिटी। इफ सॉल्वेंट इज 1 kg, नंबर ऑफ मोल इज मोलैलिटी, सो डेल्टा TB इज KB इंटू मोलैलिटी। ये रिलेशन कितों है दोबारा देखो, डेल्टा TB इज इक्वल KB इंटू मोलैलिटी कितों आया, तो पता है डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी डेल्टा TB इज इक्वल K इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ओवर दिस सॉल्यूशन बहुत पतली है तो नंबर ऑफ सोल्यूट नेगलेक्ट किए जा सकते हैं, सो डेल्टा TB इज इक्वल K इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। बस ਤੁਹਾਡੀ किताब सोल्यूट ਲਈ 2 इस्तेमाल करती है, सॉल्वेंट ਲਈ 1, मैं सोल्यूट ਲਈ B इस्तेमाल करता, सॉल्वेंट ਲਈ A। K इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर मोलर मास ऊपर आ गया, सो K इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ सोल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज डेल्टा TB। K इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज KB, नवा कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट इज नवा कॉन्स्टेंट KB। सो KB अलग अलग सॉल्वेंट अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट का मोलर मास अलग अलग है, जिदा मोलर मास ज़्यादा वह KB ज़्यादा इन जनरल। ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ NB ओवर NA, तो जे सॉल्वेंट 1 किलो होवे तो 1 किलो जिन्ने भी मोल होंगे दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी, सो डेल्टा TB इज KB इंटू मोलैलिटी। ठीक है पुत्र जी, मेरा पॉइंट क्लियर है, ये डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी है। ठीक है जी। सो ये बेस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल करने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो वंस अगेन मेरे को फार्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। KB इज पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जिदा पानी ली 0.52 होंगी है मोलैलिटी, या तो एक किलो पानी जिन्ने मोल है दैट इज मोलैलिटी, या मोलैलिटी होंगी है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर W। ठीक है जी। पर मैं तुम्हें दसता जे मोलैलिटी 1 होवे तो डेल्टा TB KB के बराबर, यानी पानी किसी भी चीज़ की मोलैलिटी 1 होवे तो KB कितना आएगा 0.52, यानी पानी किसी भी चीज़ की मोलैलिटी होवे तो डेल्टा TB कितना बन जाएगा 0.52, यानी पानी एक मोलल कोई भी सोल्यूशन बना दो बॉइलिंग पॉइंट 0.52 बढ़ेगा, 100 डिग्री तो 100.52 हो जाएगा। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हुण कुछ मैं न्यूमेरिकल कर लूँगा, तुहाडी बुक्स दिते हुए है पेज नंबर 37 पे। ठीक है, मैं एक ही करके क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिर्फ 6 क्वेश्चन है, आज काम जल्दी निबड़ जाना अपना। सुनो क्वेश्चन नंबर 1 कहता बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.15 केल्विन। कहता बेंजीन दा बॉइलिंग पॉइंट 353.15 है। ध्यान सुनी, 13 है। व्हेन 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इज 1.8 ग्राम, इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम। ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू 354.01, पहला बॉइलिंग पॉइंट से 353.13 हूँ बढ़ के होगा 354.01, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 354.01 माइनस 353.13, 8.88 आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। कैलकुलेट मोलर मास गिवन KB दिता है 2.53, मैं वैल्यू लिखती हूँ फार्मूला लिखेगा, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा TB KB मोलर मास पीछे ला दियो, डेल्टा TB इज KB इंटू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TB बेटा 0.88 इज KB, ये NCERT का क्वेश्चन है। KB दिता है 2.53 इंटू मास ऑफ सोल्यूट 1.8 ओवर मोलर मास लबना इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 90। हो जाएगा पता? दिस इज NCERT क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लियो, आंसर आ जाएगा 57.5।
दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड उन्हें क्या 13 ग्राम ग्लूकोज, करेक्ट कर लो 18 ग्राम कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा ग्लूकोज का मास कर लो 18 ग्राम। 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 kg वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg यानी 1000 ग्राम। 1 kg वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, कहता किन्ने टेम्परेचर वाटर बॉयल करेगा, मैं डेल्टा टी बी कट लूँगा। जो डेल्टा टी बी आएगा 1 डिग्री तो पानी बॉयल करेगा 101 डिग्री थे, जो 2 डिग्री है 102 डिग्री थे। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार प्रैशर, जो प्रैशर 1.013 बार हुए 1.013 बार ते वैसे पानी बॉयल करता 373.15 कैलविन ते, इन्ने बार प्रैशर ते पानी बॉयल करता 373.15 कैलविन ते जे मेरा 1 डिग्री बचे मैं कहूँगा 374.15। ध्यान नाल इन्ने बार प्रैशर ते के भी दिता है 0.52। सो लाओ जरा हैज सोल्यूट कौन सा, ग्लूकोज। मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी ग्लूकोज इज 180। लाओ जी डेल्टा टी बी इज के बी इंटू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी बी इज के बी दिता है बेटा क्वेश्चन के बी इज गिवन 0.52, वैसे भी तुम्हें पता पानी लिए के बी 0.52 है, इंटू मास ऑफ सोल्यूट 18 ओवर मोलर मास 180 इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1000। इट इज 0.052। डेल्टा टी भी है 0.052। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, इन्ना वध गया, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 373.15 होंदा है प्लस 0.052। आंसर देख लो 373.15 प्लस 0.072 यानी है 373.202 कैलविन। दिस आंसर 373.15 1.013 बार ते पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 होंदा प्लस 0.02। एक क्वेश्चन रट लियो, ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट से आंसर गलत है, करेक्ट करता मैं, ध्यान ना देखो। सेकंड क्वेश्चन 373.15 प्लस 0.052 इट इज 373.202 कैलविन। ठीक है बच्चों, शाबाश। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इतनी कर देने की कोशिश करके 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी मास ऑफ सोल्यूट इज 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन 25 ग्राम एसीटोन यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 25 ग्राम। सॉल्यूशन बॉइल्स एट इन्ने डिग्री वाइल प्योर बॉइल्स एट इन्ने डिग्री, कहता सॉल्यूशन इन्ने ते बॉयल करे, प्योर इन्ने बॉयल कर रहे हैं। डेल्टा टी बी लभ लीए, वड्डी वैल्यू 56.86 माइनस छोटी वैल्यू 56.38। कहता सॉल्यूशन द बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट है, इन्ना इंक्रीज हो गया 16 माइनस 8 इज 8, 7 माइनस 3 पॉइंट, इन्ना डेल्टा टी बी आ गया। कैलकुलेट मोलर मास गिवन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी के बी दिता है 1.72। मोलर मास कटना, लाओ फार्मूला डेल्टा टी बी इज के बी इंटू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। के बी दिता बेटा क्वेश्चन 1.72, मास ऑफ सोल्यूट 1.8, डेल्टा टी बी 0.48, मोलर मास लभना है इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 25। देखो क्लियर है, डेल्टा टी बी इज के बी इंटू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो मोलर मास आ गया बेटा जी इस क्वेश्चन 258। इज इट ओके, 258। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, ये नाल लिख के जरूर देखना पुत्र जी, ठीक है। आओ जी हम फोर्थ न्यूमेरिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट द फोर्थ न्यूमेरिकल। यस, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज 732 मिलीमीटर। वेपर प्रेशर यानी PA 732 मिलीमीटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पुत्र जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ਤੇ वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन पानी वाली सॉल्यूशन 100 डिग्री, याद करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ਤੇ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 760 मिलीमीटर। आया याद, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 760 मिलीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बी दिता, कहता बॉइलिंग के बी। मैं क्या यार इतों के बी कितों आ जाऊगा, दिता वेपर प्रेशर पूछा बॉइलिंग पॉइंट है। हूँ जब मैं आ बॉइलिंग पॉइंट लभना तो मैंने चाहिए डेल्टा टी वी के बी इंटू मोलरिटी, उन्हें पूछा बॉइलिंग पॉइंट है।
मैं पहला डेल्टा टी बी का लभ लवां, जो डेल्टा टी बी एक आ गया बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री आ जाएगा, 2 आ गया 102 डिग्री आ जाएगा, वो तो ठीक है। मैनू पता डेल्टा टी बी इज़ के बी इंटू मोलैलिटी, इट मीनस ये डाटे तो मैं मोलैलिटी कढ़नी है। ध्यान नाल, मैनू पता डेल्टा टी बी इज़ के बी इंटू मोलैलिटी, के बी 0.5 तो मैनू मोलैलिटी चाहिए है, यानी इस डाटे तो मैं मोलैलिटी करूँगा पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट इज़ एक्स बी। वट इज़ एक्स बी? एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, जिदा तुहानूं पता नीचे वाला एन बी आम तौर पर निगलैक्ट कर दिया। सो पी ए नॉट तुसीं इहदा कट्टना चाहते हैं, कैन बी निगलैक्टेड ओवर पी ए नॉट इज़ एन बी ओवर एन ए। पी ए नॉट 760 माइनस 732 ओवर 760 इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, अगर पानी 1 किलो मान लवा, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मास ओवर मोलर मास। नाउ आ की बन गया, दिस इज नाउ मोलैलिटी। याद रखो नंबर ऑफ मोल मोलैलिटी है, नंबर ऑफ मोल ही मोलैलिटी बन जाती अगर पानी में 1 किलो मान ला। मेरी गल समझ गए? अगर पानी में 1 किलो मान लवा तो नंबर ऑफ मोल ही मोलैलिटी बन जाती है। सो मैं नंबर ऑफ मोल कर ले, पानी 1 किलो पुट करता, ये आ गया 28 ओवर 760 इंटू 1000 ओवर 18 इज एन बी यानी मोलैलिटी। राइट, आ गई मोलैलिटी। नाउ जो भी आंसर आया, नाउ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। के बी है 0.52 इंटू मोलैलिटी आ गई 28 ओवर 760 इंटू 1000 ओवर 80 आ गई मोलैलिटी। डेल्टा टी बी आ गया, देन व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? 100 प्लस डेल्टा टी बी। ये आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना का 100 च ऐड कर दो। दोबारा समझो बेटा, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को ध्यान नाल। उन्हें क्या, खंड की सोल्यूशन पानी च ਉਹਦਾ वेपर प्रैशर है 732 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने पता 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रैशर ऑफ प्योर वाटर इज 760 मिलीमीटर। ये मैंने पता है 100 ते 760 होंगे। ठीक है, उन्हें पूछा की है, कहता कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, के भी दिता है 0.52। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा, मैंने पता बॉइलिंग पॉइंट फार्मूला ना डेल्टा टी बी, पहला डेल्टा टी बी कढ़ना के बी इंटू मोलैलिटी। मैनू मोलैलिटी चाहिए, मोलैलिटी कितों आई? इतों मैं लाया, ये मन च रखा, मैं लाया पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट इज तुहानूं पता इज इक्वल एक्स बी। वट इज एक्स बी? एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। जे सोल्यूशन डिल्यूट हो तो नीचे वाला एन बी निगलैक्ट कर देंगे। सो पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट इज एन बी ओवर एन ए। एन बी ही मोलैलिटी हो जाएगा अगर पानी 1 किलो मान लवा। सो पी ए नॉट 760 माइनस 732 ओवर 760 इज एन बी ही मोलैलिटी अगर सॉल्वेंट 1 किलो यानी 1000 ग्राम मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल होंगे मास ओवर मोलर मास। अगर पानी 1000 ग्राम ले लो देन दिस एन बी इज मोलैलिटी। सो ये आ गया 28 ओवर 760 इज एन बी ओवर 55.55। सो एन बी आ गया 28 इंटू 55.55 ओवर 760। ये एन बी कौन है बेटा? मोलैलिटी। ला दो डेल्टा टी बी इज के बी इंटू मोलैलिटी 0.52 इंटू मोलैलिटी 28 इंटू 55.55 ओवर 760 आ गया जी डेल्टा टी बी। देन व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? 100 प्लस डेल्टा टी बी। इज इट ओके? So this is question number 4. ठीक है बच्चा जी। Now question number 5. Question number 5. ध्यान से सुनो। On dissolving 3.24 ग्राम सल्फर, यानी mass of solute is 3.24 ग्राम। On dissolving 3.24 ग्राम सल्फर in 40 grams benzene, यानी weight of solvent is 40 ग्राम। 40 ग्राम benzene, the boiling point of solution was higher to benzene by 0.8 Kelvin. Boiling point is higher by 0.8 Kelvin, and delta TB is 0.8. Higher by 0.8 Kelvin. KB दिता है 2.53. What is molar mass of sulfur? What is molecular formula of sulfur? Sulfur का फार्मूला की है बच्चा कहना की क्वेश्चन है। सुनो, मैं सल्फर का मोलर मास कढ़ लेना। सल्फर का वैसे पार 32 होंगे, जे मेरा आंसर भी 32 आ गया तो मीनस एक सल्फर है, मोलर फार्मूला आ गया S1। जे मेरा भार 62 आ गया, सल्फर का भार 32 होंगे, मेरा का 62, यानी इस फार्मूले 2 सल्फर है, मोल फार्मूला बन जाएगा S2। यानी जिन्ना मेरे को मोलर मास आ गया
ਉਹਨੂੰ 32 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਆਂਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ S1, ਜੇ ਆਂਸਰ 2 ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ S2। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਲਫਰ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਲਫਰ ਐਟਮ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਲਫਰ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 32, ਇਹ ਸਲਫਰ ਐਟਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਂਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ S1 ਫਾਰਮੂਲਾ, 2 ਆ ਗਿਆ S2 ਫਾਰਮੂਲਾ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਡੈਲਟਾ TB is KB into mass of solute over molar mass into 1000 over W। KB है 2.53, mass of solute 3.24 over molar mass 11 है, A 0.8 है, into 1000 over weight of solvent is 40। यानी molar mass is 2.53 into 3.24 into 1000 over 0.8 into 40। ये देखो कितना आंसर आ गया, शाबाश। ये देखो कितना आंसर आ गया। ਇਹ 253 ਜਾਂ 254 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਲਫਰ ਐਟਮਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਲਫਰ ਐਟਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸਲਫਰ ਦਾ ਭਾਰ 32, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਲਫਰ ਐਟਮ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ S8। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ S8। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਲਫਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲਫਰ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲਫਰ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 32 ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 32 ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਲਫਰ ਹੈ, 64 ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਲਫਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 32 ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਲਫਰ ਐਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 8 ਸਲਫਰ ਐਟਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ S8। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। Now question number 6, ध्यान नाल देखो बेटा, a solution containing 8 gram of a substance है, यानी mass of solute 8 gram, 8 gram of a substance in 100 gram benzene, mass of solvent 100 gram, which boils at any degree, whereas pure benzene boil at any degree। delta TB काट लो, वड्डा boiling point 36.86 माइनस छोटा 35.60, ये आ गया 1.26, इतना आ गया डेल्टा TB। ठीक है जी। फाइंड मोलर मास, KB दिता है 2.02। लो जी मोलर मास करना लाओ जरा। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी, व्हाट इज KB पुत्र 2.02। व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूट 8, मोलर मास 11 है, 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ते डेल्टा TB कितना 1.26। सो मोलर मास कितना आ जाएगा पुत्र 2.02 इंटू 8 इंटू 1000 ओवर 1.26 इंटू 100। दैट्स आंसर। हो गया। हूँ एक NCERT का क्वेश्चन, एक NCERT का क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट of water at 750 millimeter of mercury is 99.63 degree centigrade। How much sucrose to be added, how much sucrose to be added to 500 gram water so that it boils at 100 degree centigrade, so that it boils at 100 degree centigrade, given KB is 0.52 Kelvin kilogram per mole। ध्यान ना ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्वेश्चन, इन्ना बॉइलिंग पॉइंट हैगा, असी इन्ना करना है। आंसर, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 99.63 0.37, इन्ना ਵਧਾਣਾ है। ठीक है जी। हाउ मच सुक्रोज टू बी एडिड, मास ऑफ सुक्रोज पूछा है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज खंड का मोलर मास तुहानूं पता 342 हुंदा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट पानी 500 ग्राम है। ला दिओ मास ऑफ सोल्यूट करना, डेल्टा TB इज KB इंटू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इत्थे प्रैशर एवें दिता है क्योंकि तुहानूं पता लो प्रैशर होएगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। कहते इस वेले पानी का बॉइलिंग पॉइंट इन्ना, असी इन्ना करना है 0.37 इनक्रीज करना। सो डेल्टा TB बेटा हैगा 0.37 इज KB, KB इज व्हाट इज KB 0.52
इंटू मास ऑफ सल्यूट लभना है, मोलर मास खंड का 342 है, इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट पानी का भार 500। तो डब्ल्यू भी क्या आ गया बेटा, ध्यान नाल 0.37 इंटू 342 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.52 इंटू 500 डिवाइड बाय 1000। ये आंसर कर दो जिन्ना भी आया। ये भी बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें ध्यान ना करो। दिस इज ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो मैं की कहना चाहता सी, पानी च अगर नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस इनक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, इनू असीं कहने हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। सो ये नाल ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाम की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई। ठीक है जी। इन द मीन टाइम एक दो क्वेश्चन तुहानूं होर करवा देवां, एक दो क्वेश्चन तुहानूं होर करवा देवां ध्यान नाल। हाउ मच वाटर must be added to 100 milliliter 1 normal HCl to make it 1/10। 1/10 100 milliliter 1 normal HCl 1/10 बनाना है। 1/10 नॉर्मल कितना पानी पाइए, ध्यान नाल तुहानूं पता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। पहली नॉर्मैलिटी 1 है, वॉल्यूम 100 है, दूजी नॉर्मैलिटी 1/2 वॉल्यूम लभना है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, वॉल्यूम आ गया 100 इंटू 10 दैट इज 1000 cc। यस बच्चा, मैं क्वेश्चन क्यों करवाया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इत्थे आके रुक जाते हैं कि आंसर इन्ना आ गया। रिमेंबर 100 cc मेरे को वॉल्यूम सीगा, उदो नॉर्मैलिटी 1 सीगी। अगर नॉर्मैलिटी 1/10 करनी है तो वॉल्यूम 1000 करना पड़ेगा, 1000 बनाना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है पानी कितना ऐड करांगे, वाटर एडिड इज 1000 माइनस 10 माइनस 100 900 cc। याद रखो पानी कितना ऐड करना पाया 900 cc। क्वेश्चन सीगा 100 मिलीलीटर 1 नॉर्मल HCl कितना पानी पाइए कि N/10 बन जाए। मैं लाया N1V1 N2V2। पहली नॉर्मैलिटी 1 है, वॉल्यूम 100 है, दूजी नॉर्मैलिटी 1/2। नवा वॉल्यूम की होएगा, नवा वॉल्यूम 1000 करांगे तो आपे N/10 बन जाएगा। नवा वॉल्यूम 1000 करांगे, 100 पहले ही सीगा 1000 करता, यानी पानी कितना ऐड किया 900 cc। इदा दे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर एंड 6 मोलर HCl टू बी मिक्सड टू मेक 1 लीटर 4 मोलर HCl। ਹੁਣ HCl ਚ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਗੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਮੋਲਰ ਤੇ 6 ਮੋਲਰ HCl ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ 4 ਮੋਲਰ HCl ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਆਨਸਰ, ਲੈਟ 1 ਮੋਲਰ HCl ਇਜ਼ x ਲੀਟਰ, 6 ਮੋਲਰ HCl इज 1 माइनस x लीटर। बच्चे क्या क्यों, क्योंकि दोनों मिक्स करके टोटल 1 लीटर करना है, क्योंकि आ चीज़ में 1 लीटर बनानी है। इन्हें दोनों मिक्स करके टोटल 1 लीटर करना है। सो अगर 1 मोलर HCl दी मैं वॉल्यूम x लीटर लवां, 6 मोलर का 1 माइनस x लीटर लूँगा। सो ये दोनों मिक्स करके नवा बनाया, यानी M1V1 प्लस M2V2 बनाया कि है M3V3। क्योंकि जो एसिड से एसिड मिक्स करो तो रिजल्टेंट मोलैरिटी होंगी M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ये रिजल्टेंट मोलैरिटी होंगी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। देखो जरा, ये मोलैरिटी पहले वाले की मोलैरिटी 1 तो वॉल्यूम है x, दूजे की मोलैरिटी 6 तो वॉल्यूम है 1 माइनस x इज इक्वल टू तीजे की मोलैरिटी 4 है तो वॉल्यूम है 1। हो गया, यानी x प्लस 6 माइनस 6x इज 4, x प्लस 6 माइनस 6x इज इक्वल टू 4। सो इन उधर ले जाओ, x माइनस 6x इज 4 माइनस 6, यानी माइनस 5x इज माइनस 2, x इज 2/5 यानी 0.4 लीटर। यानी 1 मोलर HCl होएगा 0.4 लीटर तो 6 मोलर HCl होएगा 1 माइनस x यानी 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 लीटर।
दोबारा समझो इस क्वेश्चन, दोबारा समझो बेटा, शाबाश। इस क्वेश्चन को दोबारा समझो ध्यान नाल। ये दोनों एसिड मिक्स करने, ये बनाना है, ठीक है। पहली मोलैरिटी कितनी है 1, पहला वॉल्यूम कितना मान लो x लीटर, दूजी मोलैरिटी कितनी 6, दूजा वॉल्यूम कितना 1 माइनस एक्स लीटर। बच्चा कहता है 1 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर टोटल 1 लीटर बनना चाहिए, टोटल फाइनल रिजल्टेंट मोलैरिटी एम आर कितनी चाहिए 4, तो रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना 1 लीटर। ਹੁਣ पुराना फार्मूला दो, ये दो मिक्स करके आप बनाया, सो रिजल्टेंट मोलैरिटी की होगी जो फार्मूला ना M1V1 प्लस M2V2 ओवर टोटल वॉल्यूम। M1V1 1 इंटू एक्स प्लस M2V2 6 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड टोटल वॉल्यूम, दिस इज रिजल्टेंट मोलैरिटी, ठीक है। मैं एक्स लपना, रिजल्टेंट मोलैरिटी इज 4, सो 4 इज एक्स प्लस 6 माइनस 6x, ठीक है। 4 इज 6 माइनस 5x, इन इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, यानी 5x इज 6 माइनस 4, 5x इज 2, x इज 2/5, यानी x इज 0.4, यानी 1 मोलर HCl आ गया 0.4 लीटर, तो 6 मोलर HCl कितना आ गया 1 माइनस x, 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 लीटर। जितना मर्जी कर लो, जो मैथड तो चंगा लगे। वैसे आ मैथड ज़्यादा ईजी है। 1 लीटर HCl x, 1 मोलर HCl x लीटर है, 6 मोलर HCl 1 माइनस x लीटर है, बनाना आ वाला है। सो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, एदी मोलैरिटी वॉल्यूम इज दिस, सॉल्व किया, ठीक है। x आ गया 0.4, यानी 1 मोलर HCl है 0.4, तो 6 मोलर HCl है 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 लीटर। सो इदां दे क्वेश्चन खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है जी। सो अज लेने, कल दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी करवावांगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 ਦੀਆਂ 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। थैंक यू पुत्र जी।